ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے قداور اور مسلم قائد محمد علی شبیر کو حکومتی مشیر بنانے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری تلنگانہ شانتی کماری نے جیو نمبر 116 کی اجرائی عمل میں لاتے ہوئے تمامی محکمہ جات کو احکاماتی مکتوب روانہ کیا۔ محمد علی شبیر حکومتی مشیر کی حیثیت سے اقلیتوں کے علاوہ SC/ST اور OBC کے معاملات میں حکومت کو صلاح دیں گے اور ان کے مسائل کی یکسوئی کے فرائض نبھائیں گے۔ محمد علی شبیر کو حکومتی مشیر برائے اقلیت و پسماندہ پچھڑے طبقات کی حیثیت سے نامزد کرنے کی اطلاع جیسے ہی عام ہوئی، کانگریسی حلقوں کے علاوہ اقلیتوں نے اس پر مسرت کا اظہار کیا اور اس نامزدگی کا خیر مقدم کیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت لازمی ہے کہ محمد علی شبیر کے لیے خصوصی طور پر الگ سے حکومتی احکامات جاری ہوئے ہیں، جس کے تحت ان کو خصوصی مراحت و اختیارات دیے جائیں گے۔ نئے احکامات کی روشنی میں ان کا یہ عہدہ کسی وزیر کے ہی مماثل ہوگا۔ اس عہدے کی اہمیت یوں بھی ہے کہ حکومت نے ان کے لیے اس عہدے کو تفویض کرنے کے لیے خصوصی جیو نمبر 116 جاری کیا ہے۔ اس طرح ریاستی حکومت بالخصوص ریاستی وزیر اعلیٰ نے محمد علی شبیر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ نظام آباد کے کانگریسی حلقوں نے بھی محمد علی شبیر کی حکومتی مشیر برائے اقلیت و پسماندہ وہ پچھڑے ہوئے طبقات کی حیثیت سے نامزد کرنے کا خیر مقدم کیا اور ایک ریالی کے ذریعے نہرو پارک پر پہنچ کر جشن منایا اور عوام میں مٹھائیوں کی تقسیم کی اور زبردست آتش بازی کی۔ اس جشن کی قیادت سینئر قائد سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے کی۔ اس جشن میں اشفاق احمد خان پاپا، جاوید اکرم، ہارون خان، حامد بن غانم، عبدالباری لاری ٹرانسپورٹ، قدرت اللہ خان خمر، محمد سمیع CM روڈ، شبیر رضوی، مجاہد خان، محمد ربانی، محمد انور ناگرام، محمد یونس و دیگر نے حصہ لیا۔ سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے۔ اس سے حکومت کو ایک تجربے کار قائد سے کارکردگی میں بہتری لانے کا موقع حاصل ہوگا۔ انہوں نے تمامی کانگریسی اعلیٰ قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ اقلیتی امور SC/ST مائنارٹی اور OBC کے لیے انہیں حکومت کا مشیر مقرر کیا گیا ہے اور ان کی دیرینہ خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اقلیتی امور و مسائل میں اور پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے، اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے انہیں مشیر بنایا ہے۔ ہم کانگریس پارٹی کے ورکرز کی جانب سے، اقلیتی قائدین کی جانب سے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، راہل گاندھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ملیکارجن کھڑگے جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے جناب شبیر علی صاحب کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں حکومتی سطح پر اقلیتی امور اور پسماندہ طبقات کے لیے مشیر مقرر کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کے ذریعے سے یقیناً ریاست بھر میں اقلیتوں کے جو دیرینہ حل طلب مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اقلیتوں کی بھرپور ترقی ہوگی، تعلیمی سطح پر، معاشی سطح پر، اور اقلیتوں کو مختلف مسائل کا جو سامنا کرنا پڑا ہے گزشتہ 10 سال کے دوران میں، انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں شبیر علی صاحب کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ہم کانگریس پارٹی کی جانب سے آج نظام آباد شہر میں اس موقع پر یہاں پر ایک جشن بھی منایا گیا۔ آج نہرو پارک پہ بڑے پیمانے پر کانگریس کے تمام قائدین کی جانب سے جمع ہو کر آتش بازی کی گئی اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی، اور انشاءاللہ ہم سب کو توقع ہے کہ شبیر صاحب کے ذریعے سے نہ صرف اقلیتوں کی ترقی ہوگی بلکہ وہ نظام آباد کے ایک نمائندے کی حیثیت سے نظام آباد کی ہمہ کی ترقی کے لیے بھی بھرپور اقدامات کریں گے اور شہر کے سلب علاقوں کی ترقی کے لیے وہ ممکنہ طور پر اقدامات کریں گے۔ نظام آباد اربن کانسٹیٹوینسی کے انچارج کی حیثیت سے وہ انشاءاللہ اپنے تجربے کو رب عمل لاتے ہوئے نظام آباد کی بھرپور ترقی انجام دیں گے۔ ہم شبیر صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور حکومت کا اور تمامی کانگریس کے اعلیٰ قائدین کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمد علی شبیر کو حکومتی مشیر برائے اقلیت SC/ST اور OBC طبقات کی حیثیت سے نامزد کرنے کے حکومتی احکامات منظر عام پر آئے۔ اس سلسلے میں حکومت نے خصوصی طور پر جیو 116 کی اجرائی عمل میں لائی۔ یہ اطلاع جیسے ہی منظر عام پر آئی، مسلم علاقوں میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ کانگریسی قائدین نے بھی اپنی زبردست مسرت کا اظہار کیا اور ریالیاں منظم کی اور دھماکے دار آتش بازی کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی۔ شہر کے جواد سال بے باک
कांग्रेसी कायद व साबिका कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान की क़यादत में भी एक जबरदस्त रैली हबीब नगर खोजा कॉलोनी से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कायदीन के अलावा बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। रैली में मोहम्मद अली शब्बीर और वजीर आला रेवंत रेड्डी के हक में नारे लगाए गए और कौमी कांग्रेसी सदर मलिक अर्जुन खड़गे, सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के रूह रवा रहनुमा राहुल गांधी और रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया गया और नेहरू पार्क पर मुजाहिद खान और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदर जावेद खान की क़यादत में जबरदस्त आतिशबाजी की गई। बाद ये रैली एक और रैली जो के सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़यादत में निकाली गई थी, ये दोनों रैलियां एकजा होकर गांधी चौक की सिमत रवाना हुई और वहां पर गांधी जी के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। मुजाहिद खान ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर का देरीना तजुर्बा हुकूमत के लिए कारआमद साबित होगा और मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हक में बेहतरीन सलाहकार साबित होंगे। जावेद खान और मुजाहिद खान ने मोहम्मद अली शब्बीर को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद दी। इस मौके पर इनके हमरा जाफर चौश व दीगर मौजूद थे। आने वाले दिनों में हम फाइट करते हैं सोनिया गांधी जी से, रेवंत रेड्डी जी से, मल्लिका खड़गे जी से, ये राजीनामे इनको खोल दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मनवेद आने कांग्रेस पार्टी को वोट आने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम बेहतरीन अंदाज से वोट पूरे कांग्रेस में डालेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिका खड़गे, रेवंत रेड्डी जी सबको हम मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमती मशीर बराए अक़लियत व पसमानदा व अक़लियती तबक़ात की हैसियत से नामजद करने के अहकामात मंजर आम पर आए। इसका कांग्रेसी हलकों ने जबरदस्त खैर मकदम किया। जुबली होटल चौराहे पर कांग्रेसी कायद मोहम्मद जिया की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन ने जश्न मनाया, जिसमें खुसूसी तौर पर साबिका सदर जिला औक़ाफ़ मोहम्मद जावेद अकरम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में शेख नईम शहरान, अरशद बिन सईद, शब्बीर रिजवी, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, मोहम्मद जावेद, शेख अयूब और जमात साल कायद मुजाहिद खान के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई। जावेद अकरम और मोहम्मद जिया ने भी मोहम्मद अली शब्बीर को दिली मुबारकबाद दी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेसी आला हुकाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कौमी सदर मलिक अर्जुन खड़गे से दिली इजहार तशक्कुर किया। इन कायदीन ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर रियासत तेलंगाना के अहम तरीन तजुर्बेकार मुस्लिम कायद है और इनको हुकूमती मुशीर की हैसियत से नामजद करना हुकूमत का एक अहम इक़दाम है। इससे अक़लियतों और पिछड़े हुए पसमानदा तबक़ात को जबरदस्त राहत मिलेगी और इनको हकीकी हक व इंसाफ मिलेगा। शब्बीर अली साहब की जो पौधा दिया गया उसके लिए खुशियाँ मनाने आए हुए हैं और हम साथ ही साथ रेवंत रेड्डी साहब और राहुल गांधी जी और सोनिया मैडम और खड़गे जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब शब्बीर अली साहब को इस अहदे पे फाइज किए, जो कि स्पेशल मुशीर के तौर पर रेवंत रेड्डी साहब के स्पेशल मुशीर के तौर पर फाइज किया गया है। और मैं समझता हूँ कि सारे तेलंगाना में नहीं, सारे हिंदुस्तान में एक वाहिद लीडर है जो माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाए और उठाते हैं। आज के पीरियड में अगर आप देखें तो सारे हिंदुस्तान में एक वाहिद लीडर बचा है जो मुसलमान का सेकुलर के लिए सेकुलर है और मुसलमानों की आवाज़ बना हुआ है। इसी को देखते हुए आज निज़ामाबाद में जो खुशियाँ मनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की जानिब से जनाब केशव रजू साहब और सिटी सदर है और सारे ही कारपोरेटर मिलकर कांग्रेस भवन पे और यहाँ पर भी जगह जगह पर जो खुशियाँ मनाई जा रही है वो इसी का रीज़न है। बहुत बड़ा खुशी का माहौल है क्योंकि तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा मुसलमान कायद मोहम्मद अली शब्बीर जो तेलंगाना हुकूमत ने उनको जो अपना मुशीर बनाया, SC, ST, BC माइनॉरिटी और OBC का जो मुशीर बनाया वो कैबिनेट दर्जे के ओहदा है। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली शब्बीर जो निज़ामाबाद के उम्मीदवार थे, यहाँ पर हम तमाम लोगों ने उनके लिए काम किया, मेहनत किए, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था पता नहीं। लेकिन आज जो उनको हुकूमत तेलंगाना और रेवंत रेड्डी जी और पूरी कैबिनेट और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने जो उनको जो ओहदे से नवाजा है, मैं समझता हूँ कि तेलंगाना में हर वो कौम से इंसाफ होगा। जो साबिका हुकूमतों ने ये कौम के लिए जो इंसाफ नहीं किया, आज मोहम्मद अली शब्बीर साहब SC, ST, BC माइनॉरिटी OBC के लिए जो आज मुशीर बने हुकूमत के रेवंत रेड्डी जी, उनकी हर बात सुनेंगे और कैबिनेट पूरी उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए
हर वो बिल को पास करने में मोहम्मद अली शब्बीर का अहम रोल रहेगा। वो कैबिनेट ओहदे में रहते हुए तमाम कौमें मकबूल है। मोहम्मद अली शब्बीर आज निज़ामाबाद की आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, हर कोई आज बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत ने मोहम्मद अली शब्बीर साहब के साथ सही इंसाफ किया। 22 जनवरी यानी कल रियासत उत्तर प्रदेश के जिले फैजाबाद के अयोध्या में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों नौ तामीरशुदा राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ रहा है, जिसको पूरे मुल्क में बीजेपी और उसके हामी हल्के जबरदस्त जश्न मनाने का मंसूबा रखते हैं। जश्न और रैलियों के दौरान अगर कोई नुक्स की सूरत हाल पैदा होगी तो उससे हुकूमत व पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा पुलिस ने एहतियाती इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की। कई मुकामात पर सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही अमन इजलास भी मुनाकिद किए जा रहे हैं। लिहाजा आज 21 जनवरी को निर्मल के भैंसा शहर में पुलिस ने मुस्लिम मजहबी व सियासी कायदीन का एक इजलास तलब किया। इस इजलास में मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, मौलाना रफीक, मुफ्ती खालिद कासमी, मौलाना राफी कासमी, हाफिज अब्दुल लतीफ, मौलाना रियाज कासमी, कारी अब्दुल कय्यूम, मुफ्ती इरफान कासमी और मौलाना अब्दुल कय्यूम के अलावा दिगर अहम कायदीन बशमूल फैजुल्ला खान, सदर सिटी मजलिस भैंसा, मुश्ताक कुरैशी व दिगर ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल ने की, जबकि अमन प्रोग्राम के मुहर्रिक भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी थे। इस अमन इजलास से हाफिज अब्दुल लतीफ, इमाम व खतीब मस्जिद पंजशा और मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ने बेबाक खिताब किया और कहा कि 22 जनवरी का ये जश्न हमारी दिलाजारी का सबब है। बावजूद मुस्तनिद सबूतों के मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने महज आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर के हक में फैसला दिया था, जिसको मुसलमानों ने कबूल तो किया मगर इनके दिल गमगीन है। लेकिन हम पुलिस को यकीन दिलाते हैं कि 22 जनवरी को भैंसा के मुसलमान पुरअमन रहेंगे। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की कि वो सख्त सियानती इंतजाम को यकीनी बनाए और मुसलमानों की दिल आजारी की कोशिश करने वालों पर सख्ती के साथ शिकंजा कसे। उलमा ने कहा कि हमने जुमा के खुतबात में ही मुस्लिम नौजवानों को बिलखुसूस पाबंद किया कि वो सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी से काम ले और किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का मुजाहरा न करे। इस मौके पर एडिशनल एसपी भैंसा कांतिलाल सुभाष पाटिल ने कहा कि हम 22 जनवरी के माहौल के पेश नजर आपसे अपील कर रहे हैं कि पुरअमन रहे, बिलखुसूस नौजवानों को काबू में रखे। अगर किसी किस्म की शरंगेजी होगी तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस मौके पर एडिशनल एसपी ने एक आम पैगाम भी जारी किया जो कि तमाम तबकात के लिए यकसा था। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर कोई भी सोशल मीडिया पर शरंगेज पोस्ट ना करे जिससे किसी भी तबके की दिल आजारी ना हो। अगर कोई इस तरह के पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने बताया कि भैंसा में पुलिस एक्ट 30 का निफाज अमल में लाया गया है और पूरे भैंसा में 350 पुलिस नफरी को सियानती इंतजामात के लिए मुतयन किया गया है और कैमरों के जरिए पूरे शहर बिलखुसूस हसास इलाकों पर नजर रखी जाएगी। इस मौके पर उलमा ने बताया कि बाज मुकामात पर कैमरे सड़क की बजाय जमीन की सिमत झुके हुए हैं, लिहाजा इनको सही अंदाज में लगाया जाए ताकि तमाम मनाजिर रिकॉर्ड में रहे। सबको नमस्कार, आने के लिए सबका शुक्रिया। तो 22 का प्रोग्राम कल है तो इसलिए सोचा कि एक बार कुछ मशवरा किया जाए, कुछ आप लोगों को भी कुछ सुझाव हो गए तो आप लोग भी कुछ बता सकते हैं क्या है। पुलिस का बंदोबस्त फुल रहेगा, पीसफुली इवेंट रहेगा, जैसे अच्छे रास्ते पे ही जाना चाहिए। बुरे रास्ते में तो सबको पता ही अंत क्या होता है, तो इसलिए बस आप कम्युनिटी के बड़े मेंबर हो, आपको छोटे बच्चों को गाइड करना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अच्छे से निभा ही रहे हैं, उसमें कोई उसमें डाउट नहीं है। और सबका आने के लिए धन्यवाद। कल का रिलेटेड हम पुलिस की तरफ से पूरा हमने फोर्स लगा दिया है, पूरा हमको पता है कि आपने क्या नहीं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और कल पूरा बंदोबस्त रहेगा हर जगह पर सुबह से लेकर रात तक, तो कोई टेंशन लेने की किसी को इतना मतलब बड़ा बात नहीं है। बस एक शाम मीटिंग लेने के लिए सबको बुलाया था और आपने 2-3 सजेशन दिए, उस पर भी हम मुकम्मल करेंगे हमेशा। और बोलने के लिए यहाँ पर आने के लिए सबका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। टाउन में क्या करना, कैसा करना, क्या करे तो ये पूरा पीसफुल रहेगा, उसके लिए इत्तला लेने के लिए आप लोगों को हम बुलाए थे। इसमें
हम क्या करना कैसा करना आप लोगों से हम मशवरा लेते। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मस्जिदों के मेंबरों से जुमा के दिन हम अपने लोगों को पैगाम दे चुके कि भाई पीसफुल रहें। हमारे लिए वो सर गम की घड़ी है, हम बोलेंगे हमको गम है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऐसे थे कि उनको सुनकर ऐसा महसूस होता था कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो नहीं मिला, आस्था के ऊपर फैसला हो गया। गम तो रहेगा, हमको गम है, वो तो उसका इजहार करना आपके सामने हमारा हक है। लेकिन जहाँ तक पीसफुल की बात है, अमन की बात है, उसमें हम आपके पूरे माविन मददगार रहेंगे। इसका बार बार इजहार करना, उसको जो है शो करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल हम इस ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो है पुलिस ऑफिसरान, पूरा महकमा कल के दिन को बहुत अहम समझते हुए क्या चल रहा, उधर क्या होने वाला है, किस अंदाज पर खुशियाँ मनाई जाएंगे, वो आप हजरात को उसका पूरा जो है अंदाज़ा होगा और होना भी चाहिए। गफलत में रहना ये मुनासिब नहीं। भैंसा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी ने एक खुसूसी अहकामाती बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अमन को बनाए रखने की अपील की और कहा कि आज सुबह मुस्लिम तबके का अमन इजलास तलब किया गया था और शाम के वक्त हिंदू कायदीन व रहनुमाओं का इजलास मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि अमन में खलल की कोशिश करने वाले अनासिर, ख्वाह वो कोई भी हो, इनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पुलिस पूरी तरह चौकस है और किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़ये को सख्ती के साथ कुचला जाएगा और शरपसंद अनासिर पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। భైంసా ప్రజలందరికీ కూడా ముఖ్యంగా పోలీస్ వారి తరఫున విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, రేపు జనవరి 22 యూపీలో ఉన్నటువంటి అయోధ్యలో రామ మందిర ప్రతిష్టాపన ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి భైంసా పట్టణం ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పీస్ కమిటీ మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఉదయం ముస్లిం కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్తో పీస్ కమిటీ సమావేశం ముగిసింది. అదేవిధంగా ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు హిందూ కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్తో కూడా మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రజలందరికీ ఒకటే విన్నపం, సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటటువంటి రూమర్స్ ఏవి కూడా మీరు నమ్మొద్దు. ఎలాంటి రూమర్స్ వచ్చినా కూడా ఎవరు దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు. మీ గ్రూపులలో, వాట్సాప్ గ్రూపులలో ఉన్నటువంటి అడ్మిన్స్ దానికి బాధ్యులు అవుతారు. ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళ మీద చట్టపరమైనటువంటి సెక్షన్స్ చేసి నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎలాంటి రూమర్స్ వచ్చినా, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా, ఎవరిని అయినా ఎగతాళి చేసేటటువంటి స్లోగన్స్ ఇచ్చినా, పనులు చేసినా కూడా ఇమీడియట్గా పోలీసు వారి దృష్టికి తీసుకొని రండి. ఎవరైనా సరే చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే వారిపైన కఠినమైన శిక్షలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మన నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ అయినటువంటి జానకి షర్మిల మేడం ఐపీఎస్ గారు ప్రజెంట్ పోలీస్ యాక్ట్ 30 అమల్లో ఉంది. దీని పర్యవేక్షణకు దగ్గర 350 మంది పోలీసులు, మన నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ జానకి షర్మిల మేడం మరియు భైంసా ఏఎస్పీ అయినటువంటి కాంతిలాల్ పాటిల్ సార్ ఐపీఎస్ ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి గల్లీలో, ప్రతి లేన్లో, ప్రతి రోడ్లో కూడా పోలీసు వారు ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా పోలీసు వారిని మీరు కన్సల్ట్ అయ్యి మీ ఇబ్బంది మాకు చెప్తే మేము తప్పకుండా దాన్ని పరిష్కరిస్తాం. చట్టం ముందు అందరూ సమానులని ఈ మీడియా ముఖంగా మీకు చెప్పదలుచుకున్నాం. పోలీసు వారికి కమ్యూనిటీ ఏమి ఉండదు. మేము యూనిఫామ్ వేసుకునేది అందరికీ ఒకటే అనే భావన కలిగించడానికే యూనిఫామ్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా మాకు సహకరించి జనవరి 22 ప్రశాంతంగా జరిగేటట్టు చూస్తారని భావిస్తూ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తాం.